بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقد قال الصادق عليه السلام: إن لقدر الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبلغ أبدا سبعة مبارك. آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے جس کا آج آخری سلسلہ ہوگا، کیونکہ ایام ادا کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے جس کا عنوان یہ تھا کہ کربلا کیا ہے۔ چونکہ آج ایام ادا کا آخری دن ہے اور 8 ربیع الاول ہے، اگر آپ غور و فکر فرمائیں اور دیکھیں تو آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات آئے گی، یہ جو 2 مہینہ 8 دن ہم نے ابا عبدالطاہر حسین علیہ السلام کے لیے وقت دیا اور ہم نے اپنا قیمتی وقت عزاداری کے لیے، ماتمداری کے لیے، غصہداری کے لیے مخصوص کیا، تو یہ جو عزاداری کے لیے اور ماتمداری کے لیے ہم نے وقت مخصوص کیا ہے، بعض اوقات ہمیں اپنا کیلکولیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو وقت ہم نے دیا اس وقت سے ہمیں حاصل کیا ہوا، ہم نے اس سے استفادہ کیسا کیا، ہم نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا اور اس سے ہمیں ہدایت اور معرفت کتنی ملی، اور ان چیزوں سے ہمارے وجود کے اندر، ہماری معنویات کے اندر اور ہماری روحانیات کے اندر بدلاؤ یا تنویر کتنی ہوئی۔ کیونکہ ہم اغیات کو بعد میں سمجھائیں گے کہ صاحب کربلا کیا ہے، پہلے ہم خود سمجھ لیں کہ کربلا کا اصلی مفہوم کیا ہے، اور جو امام نے جس بنیاد پر کربلا کو اتنے اہم محاسبت لا کر کے قربانیوں کے ساتھ ساتھ تمام مصائب اور آلام اور شکیبائی کو برداشت کر کے جو دین کی آبیاری کی ہے اور دین کی سچائی کی ہے، تو اس دین کو ہم نے اپنے وجود میں کس طریقے سے اتارا، کیا قربانی کو ہم نے یاد رکھا، کیا قربانیاں ہمارے پیش نظر ہیں، کیا قربانیوں سے ہم اور آپ اس حد تک آشنا ہیں کہ اگر کل امام ہم سے سوال کر لیں اپنی ذمہ داریوں کی بنا پر کہ تمہاری ذمہ داری عزاداری کے اعتبار سے، ماتمداری کے اعتبار سے، اور یہ جو قیمتی وقت تم نے اپنا ہمارے نام کے اوپر دیا یا سر دیا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا یا فائدہ نہیں ہوا، اس سے تم نے معرفت حاصل کی یا معرفت حاصل نہیں کی، تو انسان کو چاہیے کہ ان سوالوں کے جوابات میں کیا کرے، خود اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کرے اور ٹالے اور دیکھے کہ آیا ان سوالات سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ان سوالات سے ہم نے آپ کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے، ان سوالات سے ہم نے اپنی معنویات کو کس درجہ اور کس حد تک ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ اہم ترین سوال ہے جس کی طرف ہم سب کو کیا ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج کا جمعہ اگر دیکھا جائے تو 8 ربیع الاول ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ یعنی امام کو آخری غصہداری دینے کے لیے جہاں پر جلوسوں کا اہتمام ہے، مجلسوں کا اہتمام ہے، وہاں پر کیا کرنا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، اور
यकीनन पहुंचना चाहिए। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यानी हमें सफ़र करना चाहिए, जाना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी आयद होती हैं कि हम जाएं तो किस तरीके से, हम जाएं तो किस तरीके से जाएं, हम जाएं तो अपने आप को किस तरीके से सवार करके जाएं, हम जाएं तो अपने आप को किस तरीके से तहजीब की चार दीवारी में मुक़य्यद करके जाएं कि जब अगर हम अबा अब्दुल्लाह हुसैन के नाम पर सफ़र अज़ा कर रहे हैं तो फिर हमारी ज़बान ताहिर होनी चाहिए। सफ़र में वो नासेबा कलिमात कि जो हम आम ज़बानों में अपने लिए नापसंद करते हैं, किसी गैर के लिए इस चीज़ का एहतमाम ना करें। फिर सफ़र करते वक्त बाद और बाद कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो चंद सिक्कों को बचाने के लिए अपने पूरे सफ़र को बर्बाद कर देते हैं। कभी आप मुशाहिदा कीजिए कि बाद और बाद हम जा रहे हैं, पूरी ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और टिकट नहीं लिया, अक्सरियत होने की वजह से टीटीसी लड़ नहीं सकते। लेकिन आप अपने आप को ज़रा सा कंट्रोल में रखिए कि जो आप कमाने गए थे, इमाम का गम, इमाम का सवाब, इमाम की रूहानियत, इमाम की मार्फत, ये सारी चीज़ें और इमाम से अजर सैयदा की दुआ बन करके अजर अजीम हासिल करने गए थे, तो अब ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि 10-20 रुपए के लिए आपका ये सफ़र गज़बी सफ़र हो गया। समझ रहे हैं? अब ये 10-20 रुपए के लिए हमने क्या किया, यानी तो हम अपने घर से सफ़र करके निकले थे कि साहब हम रूहानियात को तय करने जा रहे हैं, मानवियात को तय करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आखिरी करने के लिए, और हमने इस मौके का क्या किया, फ़ायदा उठाए, या बिल्कुल इत्तेफाकन भीड़ ज़्यादा हो रही थी, कहीं हमने नाश्ता किया, चाय पिया और मौका मिला निकल लिए। अब मौका मिला निकल लिए, उसका कुछ नहीं गया, 2-4-10 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपका क्या किया, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपका क्या किया, आपका ये किया कि जो आपके नामे आमाल में अजर लिखा जाना चाहिए था, वो अजर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। जाहिर में आप देख रहे हैं हमने 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बचा लिए, लेकिन इस बचाने के उसमें आपको मिला क्या, क्योंकि यहाँ आज 2-4-10 रुपये, 20 रुपये की वैल्यू नहीं है। ये आप सोचिए बहुत बड़ी वैल्यू होगी, आप सोचिए बहुत बड़ा कमाल हो गया, आप सोचिए बहुत बड़े सारी चीज़ होगी, नहीं। लेकिन जो चीज़ आपसे छीनी है, जो चीज़ से आपको महरूम किया गया है, क्योंकि अल्लाह की अदालत है। अल्लाह ने जब यदि रोज़े की हालत में रस्मी सफ़र करने को, और अगर कोई ऐसा सफ़र करे कि जिसका इरादा जो है गलत हो, तो उस सफ़र की हालत में रोज़े को नहीं कबूल किया। बोलो कोई रोज़ा रख ले, अब कोई साहब रोज़ा रख लो, गए हम तो सफ़र करेंगे, तो रोज़ा रखे रहो, तो तुम्हारा भूखे में और फाके में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रोज़े में गिनती नहीं हो। समझ रहे? ये है शरीयत। इन चीज़ों के ऊपर हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। क्यों? इसलिए करबला कुर्बानियाँ चाहे वो ईसा की हो, चाहे वो तवाज़ो की हो, चाहे वो इज्जत की हो, चाहे वो एहतराम की हो, चाहे अपने नफ्स की कुर्बानी हो, यानी ये चीज़ें हमें हमसे ये चाहती हैं और ना चाहती होती। तो आप देखिए करबला में आमने सामने लश्कर था, कितना बुरा भला कह रहा था। जग इमाम ने शुरुआत नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की ताकि लोगों को ये बता सके कि देखिए तुम्हारे अंदर मांगा कितना है। वरना आप बताइए कि जिस लश्कर वालों को, फिर कह रहा हूँ, जिस लश्कर वालों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके काफिले मैदान ज़ू हसम पर लश्कर घोल को, कि जिसके घोड़ों की ज़बानें बाहर निकली थी और ये प्यास से जामबंद हुए जा रहे थे,
ऐसी कंडीशन में क्या इमाम नहीं जानते थे कि ये क्या करेगा और ये क्यों वो कर रहा है? लेकिन आप जरा सा बोलिए, उसको पानी पिलाया, सैराब किया, और उसके बाद यही आकर के जब 2 मुहर्रम को इमाम वारिद होते हैं, 3 मुहर्रम को ये कहता है कि साहब आप अपने खैमे हटा लीजिए। ईमानदारी बताइए, हम और आप होते तो करबला का क्या मैसेज देते? आप तारीफ ये नहीं दिखा सकते कि इमाम ने या इमाम के किसी भी चाहने वाले ने पलट करके खुद से ये कहा हो, आज तुम खैमे हटवा रहे हो, क्या कल हमने तुम्हें नहीं बचाया था? इंसान जताया हो तो बताइए, कुछ पलट करके कहा हो तो बताइए। हत्ता चैलेंज करने के बाद भी इमाम ने यानी अपने ही शेर को कंट्रोल किया। आप चैलेंज करना एक अलग चीज़ है, लेकिन तुम इस चीज़ को बचाए रखो। क्यों? इसलिए कि इमाम जानते हैं कि ये हमारा मेहमान है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्ताख की गुस्ताखी एक हद तक माफ़ की जा सकती है, लेकिन कब? जब यकीन हो जाए कि ये पलट करके हमारी तरफ आ जाएगा। और अगर यकीन ना हो तो आप बताइए, जनाब ज़ैनब ने उमर साद को ललकार करके एहसान को याद दिलाया या याद नहीं दिलाया? दोनों की राह में याद दिला रहा हूँ। यानी क्योंकि इमाम को पता था ये हुर आ जाएगा, लेकिन उमर साद और पेशर साद को आना नहीं था। जब आना नहीं था तो नतीजा ये था कि जनाब ज़ैनब ने फिर उसको याद दिलाया, क्यों खड़ा तमाशा देख रहा है? और जबकि मेरा माँ जाया ज़िबा हो रहा है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब उसको उसका बैकग्राउंड याद दिला रही कि तुझ पर हमारा एहसान है, तेरे साथ हमने नेकियां की हैं और तू आज हमारी नेकियों का बदला ये दे रहा है। लेकिन क्या किसी ने जनाब हुर के लिए ऐसे कोई कलमात कहे? आज ये 2 मैंने मिसालें दी और कंपेयर किया इस चीज़ को समझने के लिए और समझाने के लिए, ताकि आप समझिए कि अगर आपसे कोई सवाल करे करबला क्या है, तो आप यही कह सकते हैं करबला 2 महाजों पर ऐसी कुर्बानियों का नाम है कि जहां पर हम कुर्बानियां तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ईसार कहां पर करना है ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें ईसारगरी कहां पर करनी है, हमें समझाना कहां पर है, हमें पेश कहां पर करना है, हमें सारी चीजों को बतलाना कहां पर है। क्यों? जब हम इन चीज़ों को पेश करते चले जाएंगे, नतीजा यही होगा कि हम करबला के बेहतरीन मैसेजेस जो हैं इमाम के, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमें गुस्सा आना चाहिए, कहाँ पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, कहाँ पर खामोशी अख्तियार करनी चाहिए और कहाँ पर खामोशी अख्तियार नहीं करनी चाहिए, कहाँ पर अगर कोई हमें दुहाई दे तो दुहाई देना चाहिए या दुहाई नहीं देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हमारे लिए क्या है? समझने का मकाम है। काश मातमदार और अदादार जितने भी मौला के चाहने वाले हैं, जब ये अदादारी सैयदुश्शुहदा को बर्पा करें तो इस चीज़ को भी जिसका आगाज तहजीब नफ्स से हुआ है उसकी रियायत सबसे पहले करें। यानी अगर करबला क्या है इसका पैगाम समझना है तो तहजीब नफ्स की रियायत करना सबसे पहले जरूरी है। और आज मुहर्रम के आगाज से लेकर के 2 महीना 8 दिन तक, 8 रबीउल अव्वल तक, अगर किसी की तहजीब को, किसी के सब्र को, किसी के इल्म को, किसी की बुदबारी को, किसी के अच्छे अखलाक को, किसी की इनकिसारी को, किसी के तवाज़ु को अगर समझना है तो आप ज़रा सा दूर हट करके देखिए कि इसकी ज़बान कैसे चलती है, इसकी मक्कारियाँ कैसे पेश करता है, इसकी धोखाधड़ी कैसे होती है। क्यों? इसलिए कि जब अगर हम मक्कारियाँ पेश करना शुरू कर दें, अगर हम सारी चीज़ों को पेश करना शुरू कर दें, नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जो चीज़ें हम बताना चाहते हैं हमने अभी तक करबला को संगति नहीं दी। क्यों? इसलिए कि अगर आपको अपने आप को जांचना और परखना है तो आप अगर घर से निकले अदादारी के लिए तो अदादारी के लिए ही जाइए, कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए।
क्यों? इसलिए कि घर वालों को धोखा दे करके निकलना ये अच्छा नहीं है। आज नौजवान और हमारा युवक और जिसमें नौजवान ये पाए जाते हैं, आज आप इनको देखिए, अगर मुलाहिदा कीजिए तो नतीजा ये होगा कि ये निकलते घर से हैं अदादारी अबा अब्दुल्लाह के लिए, मातबदारी अबा अब्दुल्लाह के लिए, मजलिस अबा अब्दुल्लाह के लिए, लेकिन ये नज़र कहाँ पर आते हैं? फर्श अज़ा से बाहर। ये तहज़ीब नफ्स है, ये तवाज़ो है, ये करबला है, ये घर वालों के साथ वफादारी है, ये हुसैन के साथ ईमानदारी है। आपको मतलब ये चीज़ें क्या हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि साहब करबला क्या है, तो आप पहले इसके पर कहिए कि अगर आप अपने घर वालों से ये कह के, ये मैसेज मैं यूथ के लिए दे रहा हूँ, नौजवानों के लिए दे रहा हूँ कि आप गौर कीजिएगा कि ताकि हमारा नौजवान समझे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करे कि अगर हम घर वालों से ये कह के निकल रहे हैं कि हम जा रहे हैं मजलिस में, हम जा रहे हैं जुलूस में, हम जा रहे हैं फला जगह, तो अब वहाँ के अलावा उसके लिए कहीं और जाना सही नहीं है। और आज हमारे नौजवानों के अंदर बिगड़ने का रीज़न भी यही है कि जहाँ से उसे वाज मिलना चाहिए, नसीहत मिलनी चाहिए, जहाँ से उसे तौफीक़ आले मोहम्मद मिलना चाहिए, जहाँ से उसे दर्स आले मोहम्मद मिलना चाहिए, जहाँ से उसे तहज़ीब आले मोहम्मद मिलना चाहिए, वो उसी मरकज़ से दूर है। भाई हमारा काम ही पढ़ाना लिखाना है, हमारा पेशा ही है टीचिंग करना, पढ़ाना, दीन के मामला को बतलाना, समझ रहे हैं? और मौलवी मौलाना होने का मतलब ही यही है कि आप इस्लाम की तालीम दीजिए। हमारा फरीज़ा ही है बताना। अब कोई नाराज़ हो जाए तो वो उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी से तो कोताही नहीं कर सकते। अब आप ज़रा सा समझिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आप मुलाहिदा कीजिए, बच्चा उस्ताद से जितना करीब होता है, दर्स उतना ही समझ में आता है और उतना ही जल्दी उसको वो कैच करता है। और जो बच्चा, आप गौर कीजिए, जो पीछे बैठते हैं जान चुराने के लिए, वो कभी इनको चिकोटी काटेंगे, कभी उनको चुटकी लेंगे, कहीं इनको उंगलियों से सताएंगे, कहीं उनको टीप लगाएंगे, कहीं ये सब चीज़ें क्या है, यानी आधा माइंड उनका लगा हुआ है। तो अब आप सोचिए, जहाँ उस्ताद सामने हो लेकिन ज़रा सा फासला कर लेने से जो किताब का दर्स है, किताब खुली हुई है, वो सही से समझ में नहीं आता है, तो जिस फर्श अदा पर आप बैठ नहीं रहे हैं और उसकी चारदीवारी और हद से बाहर हैं, तो वहाँ क्या पता चलेगा कि मौलवी ने बताया क्या है वो और अहले बैत का दर्स दिया क्या गया है? एक सलवात तो पढ़िए सब मिले। ये चीज़ें क्या हैं? ये चीज़ें आज समझने की हैं। और इत्तेफाकन आप गौर कीजिए ज़रा सा, हमारे बुजुर्गों से कुछ चीज़ें सीखिए, चूँकि बहुत सारी चीज़ें कैमरों में देखी जाती है, ऐसे मुलाहिदा नहीं हो पाती। कभी जहाँ की वीडियो किसी प्रोग्राम की आए, जहाँ पर किसी मजलिस की वीडियो आए, आप बैठ करके अकीदत की निगाह से न देखिए, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलिएगा, अकीदत की निगाह से ना देखिए, आप उसको स्लो मोशन पर ज़रा सा चलाइए, तो जो बुज़ुर्गों के बैठने का अंदाज है, ये खुद ही बता देगा हम कितना मुतवज्जे हैं। यानी जो एक आलिम बता रहा है, एक मौलवी बता रहा है, एक ज़ाकिर बता रहा है, हम उसकी तरफ कितना मुतवज्जे हैं। अब जब मुतवज्जे हम है ही नहीं हैं, तो हम उसकी बात समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब आप स्लो मोशन में वीडियो किसी भी प्रोग्राम में उठाइए देखिए, तो आपको बहुत सारे लोग और आते दिख जाएंगे। ठीक है, हो सकता है खस्तगी हो सकता है थकन हो सकता है बेचारा दिन भर से के कारोबार से थका हुआ आया हो, दिन भर की फेरी करके आया हो, दिन भर हलाल रोजी कमाने के लिए निकला हो, थका हो, ये जायज़ है, मुमकिन है थका हो। और इस चीज़ में गुंजाइश पाई जाती है कि जहाँ पर इंसान को थोड़े लम्हे के लिए सुकून मुयस्सर होता है तो आँख लग जाती है। सही है, ये हो सकता है, लेकिन एक वो इंसान कि जो फेरी करके ना आया हो, सेविंग करके ना आया हो, एक इंसान घर घर जाकर के कुछ
है, इसका कारोबार छोटा, जो बेचारा साइकिल के ऊपर, जो रिक्शे के ऊपर, जो ठेले के ऊपर, जो पैसे जो जहमत कश है, ये तो थके होते हैं, इनका सोना समझ में आएगा। लेकिन जो आराम तलब हो, अगर वो बैठ करके सो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उतना मुतवज्जे एक आलिम और ज़ाकिर की तरफ नहीं है। अब ज़रा सा आप सवाल कीजिएगा कि आपको उसकी मजलिस में बयान किया हुआ मैटर समझ में आया कितना? और सबसे सख्त और दुश्वार तरीन मरहला जो होता है वो जानते क्या होता है? वो यही होता है कि जब एक आलिम करबला की उन हिस्ट्री को या उन वाक़े को या उन चीज़ों को, पहलुओं को और गोशों को पेश करे जो आपने कभी सुना ना हो, जो आपके गोश रद ना हो, आपके कानों तक जिसकी समातें ना पहुँची हो, वहाँ पर आप या तो तवज्जो से सुनेंगे बयान क्या किया जा रहा है, या आप बिल्कुल घड़ी देखेंगे, मोबाइल में लग जाएंगे, मैसेजेस देखने लगेंगे। क्यों? इसलिए कि ये आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो जब पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप ज़ाकिर को सुनिए और उसको थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। मौलाना साहब 1 मिनट, एक सवाल है, ये जो आप पढ़े थे मेरी समझ में नहीं आया, वजाहत कर दीजिए। अगर ऐसा नौजवान आज हमारे समाज में तरबियत याफ्ता हो जाए तो समझ जाइए कि आलिम भी सुधर जाएगा, सुनने वाले भी सुधर जाएंगे। एक सलवात पढ़िए सब और कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उसने अगर कोई नई चीज़ पढ़ी, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप सवाल कीजिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। और अगर इस्लाह होगी तो आपको इस्लाह करने वाले का सवाब मिलेगा, और आलिम को बयान करने का कि जो उसने जद्दोजहद की है, कोशिश की है, मुतालिया किया, वलो वो गलत समझ पाया हो या गलत समझ बैठा हो या गलत नतीजा गिरी कर बैठा हो, या हो सकता है तंग मुताले की वजह से, तंग नजरी की वजह से किताबों की में दस्तरसी ना हो, नतीजा कुछ और दे दिया हो, तो हो सकता है अगर वो पलट करके अपनी इस्लाह कर ले तो अजर अलग है। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि हमारे इमाम कहते हैं, एक सवाल पढ़िए तो हमारा इमाम क्या कहता है? इमाम कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहिए, इस्लाह करना हमारा काम है। किसके लिए? मुजतहिदीन के लिए। मतलब ये जो वाक़या पढ़ रहा हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान इल्म की तरफ ना जाए। हर ज़ाकिर, आलिम, खतीब, खतीबा जितने भी हैं, ज़ाकिरात, आलिमात, मिंबर पर आए और बगैर पढ़े लिखे हैं उसके बाद कहें कि साहब मौला ने ये तो कहा है कि आप पढ़ करके कहीं गलती होगी तो हम इस्लाह करेंगे। नतीजा गलत ना जानिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दीनी मामला में नतीजा बहुत जल्दी ले लेते हैं कि साहब मौलाना लमदा तो यही तो बयान कर रहे थे, ये तो कह रहे थे कि आप अपनी मेहनत को न छोड़िए, बकिया इस्लाह करने वाले हमारे इमाम रहेंगे। इमाम ने ये नहीं कहा है कि आप किताबों की तरफ ना, ये इस्लाह हम कर देंगे। कहा आप किताबें पढ़ते रहिए, आप इल्म के सामने ज़ानुए अदब तय करते रहिए। अब कहीं पर गलतियाँ होती हैं बताने में, भूल चूक में, मसले में, फतवे में, किसी चीज़ में, तब हम तुम्हारी इस्लाह करेंगे। मैंने जैसे एक आलिम दीन, मशहूर आलिम दीन, जिनके सामने एक मसला आपका सुना हुआ, सिर्फ शाहिद मिसाल आगे बात पेश कर रहा हूँ कि कोई साहब आए और आने के बाद कहा कि एक औरत का इंतकाल हो गया जो हामला है, प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और औरत मर गई, बताइए क्या करें? इसको ऐसे ही दफन कर दें या इसको कुछ और करना है? तो आलिम ने पहले ही स्टेप के ऊपर जानते क्या कहा जाइए ऐसे ही दफन कर दीजिए, आप और कर रहे हैं, और वो सब चले अपना। उसके बाद बीच में एक आदमी पहुंचा और कहा कि भाई अभी मौलाना साहब ने हमें भेजा है और फलां आलिम ने, और उन्होंने यही कहा है कि आप नहीं, अभी उन्होंने किताब में देखा और ये कह रहे हैं कि आप जाइए, औरत का बायां पैर चाक कीजिए, बच्चे को निकाल लिए, उसके बाद औरत को दफन कर दीजिए। इन्हें पता ही नहीं फतवा देने वाले, और उन्होंने जाकर के यही काम किया, औरत के पेट का ऑपरेशन है, बच्चे को जिंदा निकाल लिया। बच्चा जब 3-4 साल का हो गया तो
اب وہی شخص اس بچے کو لے کر کے آیا اور عالم دین کے پاس کہا مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہم آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے تھے، آپ نے پہلے مسئلہ یہ بتایا تھا، بعد میں آپ نے فلاں کو بھیجا تھا، اور یہ مسئلہ اگر آپ نے دوبارہ اصلاح نہ کی ہوتی تو آج یہ بچہ میرا زندہ نہ بچتا۔ آپ سمجھ رہے، عالم دین چونک گئے کہ ہم نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے تو کتاب دیکھی ہی نہیں، ہم نے کسی، اور اس کے بعد دل میں یہ طے کیا کہ آج کے بعد سے میں کوئی مسئلہ بیان ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ امام آئے، کہا نہیں دیکھو جیسے تم نے فتویٰ دینے میں غلطی کی تھی، ہم نے اصلاح کر کے جان بچا دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے اصلاح کی ہے، ہم نے یہی کہا کہ تم نے فلاں کو بھیجا ہے تو فتویٰ تم دیتے جاؤ، اگر کہیں غلطی ہوگی تو اصلاح ہم کرتے چلے جائیں گے۔ ایک سلام تو امام اصلاح کہاں پر کہتے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کا رابطہ علم سے رہے، جڑا رہے، عالمانہ رہے، درس سے رہے، تدریس سے، بک سے رہے، آپ وہاں پر پڑھیے۔ درس و تدریس میں، مدارسہ میں، مباحثہ میں، مناظرہ میں، مطالعہ میں آپ اپنے کو بزی رکھیے۔ جب آپ بزی رکھیں گے، پڑھیں گے، اب کہیں پر غلطی اگر ہوتی ہے تو ہمارا امام بیٹھا ہے حفاظت کے لیے۔ کون فرما رہا ہے؟ یعنی یہ چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ چیزیں ہمارے امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب ایسے ہی آپ آئیے کربلا، آپ سے کوئی سوال کرے کربلا کیا ہے؟ چونکہ آج اس موضوع کے جو گفتگو ہے وہ آخری گفتگو ہے، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ نئے موضوع کا آغاز کیا جائے گا، اور جب نئے موضوع کا آغاز کیا جائے گا تو اس میں مطالب بھی بدل جائیں گے۔ تو اب اگر کربلا کو آپ سے کوئی پوچھے تو کربلا کے کسی بھی ایک زاویے کو آپ نہ لیجیے گا، کربلا کے جوانب کو لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ کربلا کے درس کو آپ لیجیے۔ آج ہم نے درس کربلا میں جو اہم پیغامات ہیں وہ ہے صلہ رحمی، وہ ہے احترام، وہ ہے عزت، وہ ہے بھائی چارگی، وہ ہے حقوق کی رعایت، وہ ہے ایک دوسرے کا احترام، وہ ہے یعنی رشتوں کا اتحاد، وہ ہے یکجہتی کی طرف چلنا، وہ ہے ایک سمت ایک مقصد کی طرف کاروبار روا دما ہونا۔ آج انہی میسیجز کو ہم نے بھلا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ آج انہی میسیجز کو ہم نے کیا کیا؟ بھلا دیا۔ ہم پڑھتے ہیں 72 ایک ہو کے ایک مقصد پہ تھے، لیکن آج اگر ہم ایک کمیٹی ہو، ایک انجمن ہو، ایک خطے کے ایریے ہو، ایک محلے کے ایریے ہو، ایک سماج کے ایریے ہو، ایک شہر کے ایریے ہو، ہم ایک نہیں ہیں، اور 72 کا ایک ہو کر کے ماتم کرتے کتنے اچھے ہیں۔ تو ہم نے جو میسج دے لیا وہ کیا لیا؟ اتحاد، یکجہتی، درس وحدت، درس یکجہتی لیے ہی نہیں۔ آپ سوچیے 72 ہو کر کے ایک مشن پر، جس میں غلام بھی ہیں، کنیزے بھی ہیں، جس میں آقا بھی ہے، جس میں امام کے پیسے والے بھی ہیں، جس میں امام کے مطیع بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، اغیار بھی ہیں، غیر مذہب والے بھی ہیں، غیر سماج والے بھی ہیں، جن کا دین سے رابطہ کم تھا وہ بھی ہیں، جن کا رابطہ زیادہ تھا وہ بھی ہے، اور سب جا رہے ہیں ایک سمت۔ اور ہمیں تو بچپنے سے پرویا گیا، ہمیں تو بچپنے سے بتایا گیا، ہماری ماؤں نے تو یعنی لوریاں دے دے کر کے ہمیں درس دیا، تب ہم نہیں سدھر پا رہے ہیں، تب ہم یکجہتی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب آخری بات پہلے خطبے کی کہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ کربلا کے جو اہم میسیجز کو ہم نے بلایا ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ ہم اپنے گھر میں نہ باپ کا احترام کرتے ہیں نہ ماں کا، نہ بھائی کا احترام کرتے ہیں نہ بہن کا، نہ ہم خالہ کا احترام کرتے ہیں نہ خالو کا، نہ ہم پھوپھی کا احترام کرتے ہیں نہ پھوپھا کا، نہ ہم احترام چچا کا کرتے ہیں نہ چچی کا، نہ ہم احترام دوسرے رشتوں کا کرتے ہیں۔ اور جب کربلا میں آ کر کے دیکھیے تو یہی رشتے کتنے خوبصورتی کے ساتھ نبھائے گئے ہیں، یہ آ کر کے درس کربلا سے لیجیے کہ پھوپھی ہیں تو کیسی ہیں، خالہ ہیں تو کیسی ہیں۔ آپ دیکھیے جناب زینب کے لیے اگر دیکھا جائے تو ان کی اولاد یہ ماں ہے، اور جناب ام کلثوم
सज्जाद के लिए या जनाब अली अकबर के लिए, यही ज़ैनब और उम्मे कुलसूम क्या है, फूफी है। यही दो रिश्ते, चचा खाला चची इला आखिर फूफी और दूसरे रिश्ते, इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिए तो आज हमारे यहाँ फूफी में, फूफा में, खाला में, खालों में जितने इख्तिलाफात नज़रियात के पाए जाते हैं, जबकि ये वो रिश्ते होते हैं जो सगे होते हैं। और भी रिश्ते जो सगे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकवा अगर औलादों को होता है तो क्या होता है, फूफी ने ये कह दिया, फूफा ने ये कह दिया, खाला ने ये कह दिया, खालू ने ये कह दिया, चचा ने ये कह दिया, और आकर के करबला को पड़ गया। तो कम से कम हर हुसैनी को इतना तो ख्याल होना चाहिए कि दर्स करबला अगर अपनाओ तो वो जो असली रिश्ते हैं उनमें तो इतना इत्तेहाद होना चाहिए कि पता चले कि तुम 10 होकर के एक हो, 2 होकर के एक हो, 5 होकर के एक हो, ना ये कि 1 होकर के 10 में बिखरे रहो, 10 होकर के 20 में बिखरे रहो। एक सलवात पढ़िए सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हुसैन अलैहिस्सलाम हाज़ा मा औसा बिल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला अखी मुहम्मद अल-मारूफ इब्न हनफिया अन्न हुसैन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जा बिल हक़्क़ि मिन इंदिल हक़्क़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में, दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस की तकमील करते हुए हमारे खुतबे का मौजू चल रहा था मक़ासिद हुसैन खुद उनकी ज़बानी पर, और आज मैं गुफ्तगू को ज़रा सा समेटते हुए अगर आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए और देखा जाए कि मकसद हुसैन खुद उनकी ज़बानी क्या है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मकसद हुसैन को खाली जब हम मौलवियों और ज़ाकिरों की ज़बानी सुनते हैं तो हम दर्स और तदरीस समझ से, रूहानियात से बहुत दूर होते चले जाते हैं। और अगर मकासिद हुसैन को हम उनकी ज़बानी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन यानी जो चीज़ें हमारे अंदर पाई जाएंगी वो चीज़ें हम हुसैन से दर्स सीख करके अगर कमियां होंगी तो दूर करेंगे, और अगर उस चीज़ के ऊपर अमल कर रहे होंगे तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे। समझ रहे हैं? और जब हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे तो जाहिर सी बात है यानी हमारी रूह को खुशी मिलेगी, और जब हमारी रूह को खुशी मिलेगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब हमारी रूह खुश होगी तो हमारी सेहत के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर, हमारे अफ़आल के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, हमारी फ़आलियत के ऊपर असर अंदाज होगी। मसलन जब आप कोई नेक काम और दीनी काम करते हैं तो आपके जज्बात अलग होते हैं, और आपको जो दिल से खुशी मिलती है उस खुशी का एहसास सिर्फ आप कर सकते हैं। दूसरे सिर्फ ये देखते हैं कि आपके अंदर जोश कितना है और आपके अंदर जज्बा कितना है, और आपके अंदर थकन का भी एहसास नहीं हो सकता। यानी आपको अगर घर का काम सौंप दिया जाए तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ दीन का काम हो और आपके दिल से जुड़ी हो तो आपको कोई कहे या ना कहे, आपको उसके करने में एक रूही खुशी मिलेगी। सही है?
जब ये चीज़ मिलेगी तो अब अगर आपको मकसद हुसैन खुद इमाम की ज़बानी मिल रहा हो, जैसे दोस्ती, हमें हकीकी दोस्ती की मिसाल अभी इब्न मदाई जैसे से मौजूद है कि दोस्त हो तो ऐसा हो, ना ये कि दोस्त हो जो हमें बहका करके ले करके चला जाए कि साहब हम आए कार खैर के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाहर में कहा हो यार चाय पीते हैं और बैठे इतनी देर गपशप करते रहे कि जुमा ख़त्म हो गया, अब पता लगा यार तुम्हारे चक्कर ना लगे तो जुमा मिल गया होता। और अगर यही दोस्त वो कहता चाय क्यों पीने चलते चलेंगे, खुतबा भी सुन लेंगे, नमाज भी हो जाएगी, तो दोस्ती का हक ये वाला अदा होना चाहिए था, तो चाय और पानी वाला नहीं अदा होना चाहिए था। जब इस चीज़ को अगर आप देखेंगे और गौर व फिक्र करेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि मकसद हुसैन की तरफ आप मुतवज्जे होंगे और अज़ादारी में उन चीज़ों का लिहाज करेंगे जो चीज़ें आज रूहे आसान है। आज आप देखिए ख़वातीन के लिए भी एक मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ, वो यही कि अभी आप देखिएगा जो लोग 8वीं करने गए हैं, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं करो, ज़्यादातर अफराद ऐसे होते हैं कि 4 बजे के बाद अगर कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग मिक्सिंग कर दी जाए तो आपको जितने लोग जुलूस में नहीं नज़र आएंगे उससे ज़्यादा लोग आपको मार्केट में और दुकानों में नज़र आएंगे और यही कहते नज़र आएंगे कि साहब 4 बजे के बाद शब क्या होती है, बदल जाती है या नहीं है? अपना मकसद है तो 4 बजे शब क्या हो रही है, बदल रही, फोन भी खरीदा जा रहा है, चूड़ियाँ भी कहा साहब अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, सूरज को गुरूब हो जाने दो, शब फिर बदल जाएगी। और अगर 4 बजे शब बदलती है तो मिसाल अगर लखनऊ वालों की दी जाती है तो लखनऊ वालों से कहिए 4 बजे अपना रोज़ा खोल करके दिखाएं तो जाने हैं। 4 बजे अगर रोज़ा खोल सकते हो तो हम यकीन कर लेंगे, हाँ कोई साहब जिद्दी ना हो कि हमने खोल लिया अब तो बदल गई, और रोज़ा बच जाए तो जाने भाई, चूँकि बहुत सारे लोग जिद्दी भी होते हैं। जैसे एक बच्चे को आप सिक्का दीजिए और कहिए बेटा ये सिक्का नहीं चलेगा, तो वो उस सिक्के को लुढ़का देगा और जब वो लुढ़क करके बढ़ जाएगा, आप तो कह रहे थे ये नहीं चलेगा, और सिक्का क्या हो रहा है, चल रहा है। सलमान बड़ी जरूरी है, गौर फरमा रहे हैं। यानी ये चीजें क्या कहलाएंगे, ये चीजें वो मैसेजेस को देंगी कि जो आज हम मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके लिए भी ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, शब बदलने का इंतज़ार करें, फिर तो खुशियाँ अहले बैत के घराने से जो हमें मैसर हुई है वो हम मनाएंगे। जब हम 2 महीना 8 दिन कम मना सकते हैं तो एक दिन खुशी भी मनाएंगे, और कहीं इससे ज़्यादा खुशी हमें तो उसके मरने पर मनानी चाहिए कि जो इमाम हुसैन का कातिल है, जो वास्ते जहन्नम 14 रबीउल अव्वल को हुआ है, तो कम से कम इसमें तो वो इत्तेहाद का पैगाम हर मुसलमान को देना चाहिए जो आशिक़े हुसैन है और आशिक़े बर दुश्मनाने अहले बैत लाना। गौर करना है, क्यों? इसलिए कि जो कातिल हुसैन उसके दर के जहन्नम होने पर तो हमें खुशी का मौका आता है ना, उसमें आप 4 चांद लगाइए, जश्न मुसर्रत कीजिए, महफिल मुसर्रत कीजिए। क्यों? इसलिए कि जब हम 2 महीना 8 दिन इमाम के नाम पर कम कर सकते हैं, जिनके कातिल के मरने के ऊपर वास्ते जहन्नम के ऊपर, क्या हम खुशी नहीं बर्पा कर सकते? तो समझना, यानी ये सारी चीज़ें, यानी हमें क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। और जब हमें मालूम है और ये चीज़ें जब हमारे सामने हैं तो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जिससे हमारा इमाम राज़ी हो। फिर कह रहा हूँ, जिससे हमारा इमाम राज़ी हो। बस इतना ज़हन में रहे कि आज का दिन
शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। 8वीं तारीख इसीलिए होती है क्योंकि इस सिलसिले में आखिरी गम जो शियाने हैदर कतार को जो मिला है वो इस इमाम के इर्तिहाल ने, शहादत ने, क्योंकि इमाम को जहर से शहीद किया गया और मोतमिद अब्बासी ने सन 260 हिजरी में आपको दे दिया और आप इस दुनिया से रुखसत हुए। तो अब आप जरा सा अंदाजा कीजिएगा कि ये सोचिएगा कि आपका इमाम जो पर्दे गैब में मौजूद है उसको हमें ताज़ियत देनी है और पुरसादारी देनी है, उसको हमें पुरसा देना है, उसके गम में हमें शरीक होना है। अब गम में किसी के कैसे शरीक हुआ जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं और गम में शरीक होने का सलीका और तरीका भी हमारे पास यही होना चाहिए कि हम अपने इमाम को पुरसा दें कि मौला आप यतीम हो गए। और यतीमी किसे कहते हैं ये आप अहले बैत से ज़्यादा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं क्योंकि 2 महीना 8 दिन हम अहले बैत का तज़किरा करते हैं और इस इमाम को पुरसा देते हैं साथ साथ शहजादी के कि शहजादी को पुरसा दिया उनके लाल का और जो यानी इमाम की औलाद से आज हमारा इमाम पर्दे गैब में इसको उसके जद्दे मज़लूम का पुरसा देते हैं। तो अब जब पुरसा देते हैं तो इस इमाम को पुरसा हमें कैसे देना चाहिए? वैसे ही देना चाहिए जैसे जानते हैं जनाबे सकीना ने अपने बाबा से ये कहा था, बाबा प्यार वैसे ही कीजिएगा जैसे रुकैया हो गया। रुकैया कौन? यानी दुख्तरे जनाबे मुस्लिम सलामुल्लाह अलैहा, उसकी बेटी को जैसे प्यार किया था वैसे प्यार कीजिए। हमारा इमाम हमारी नजरों से ओझल है। हम तो ये नहीं कह सकते मौला आप हमारे सामने होते या हमारे पास होते तो हम आपको गले मिल करके आंसू बहाते या आपको पुरसा देते। नहीं, हो सकता है हमारा इमाम यही कहीं हो सकता है कहीं आया, हो सकता है जुलूसों में, हो सकता है मजलिसों में, हो सकता है हमारे इन अता खानों में हो। तो अब अगर जनाजा मौजूद हो तो चेहरों पर हंसी नहीं होनी चाहिए, जनाजा मौजूद हो तो चेहरों पर मुस्कान नहीं होनी चाहिए, जनाजा मौजूद हो तो मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, जनाजा मौजूद हो तो अपने चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। क्यों? इसलिए जब हमारे घर में मैयत होती है तो हम खाना छोड़ते हैं, पीना छोड़ देते हैं, जो सामान जहाँ पड़ा वहीं छोड़ दिया, जो जैसे खा उसको वैसे ही। क्यों? इसलिए कि हम न साफ करते हैं, न सफाई करते हैं, न देखभाल करते हैं, न कुछ करते हैं, न कुछ करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं करते कि हमारे घर में जनाजा है। तो आप जरा सा तसव्वुर कीजिए कि आपके इमाम जो मुंतक़िम खून हुसैन हो वो यतीम हुआ हो, वो कैसे हम मनाएगा? जब वो जद्दे मज़लूम के, बस आखिरी बात, जद्दे मज़लूम के ऊपर आंसू बहाता है ये कह के कि आपको रुला करके मारा गया, आपको तड़पा करके मारा गया। अगर मेरा आँख के आंसू खुश्क हो गए तो मैं खून के आंसू बहाऊंगा, मैं खून के आंसू रोऊंगा। तो अब जब वो खुद यतीम हुआ होगा तो वो कैसे आंसुओं से रो रहा होगा, वो कैसे आंसू बहा रहा होगा। तो हम सब अपने इमाम की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारा ये जो अदा का आखिरी दिन है अय्याम अदा का, परवरदिगारा हमारी ताआत को, हमारी इबादतों को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हमारे आंसू को हमारे सीधा में जगह फरमा देना। परवरदिगारा हमारी पुरसेदारी को, हमारी मातमदारी को, हमारी अज़ादारी को शरफ़ कबूलियत अता फरमा देना। मौला हम सब अपने इमाम के गम में बराबर के शरीक हैं। परवरदिगारा हमारी पुरसेदारी को और हमारे इमाम के गम में शरीक होने को कबूल फरमा देना। मौला आज साले आइंदा मुझे नहीं मालूम कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। परवरदिगारा अगर उम्र के अय्याम आखिरी हैं ये इख्तितामी हैं चल रहे हैं तो परवरदिगारा तुझको हुसैन का वास्ता, उसकी जद्दा का वास्ता, इमाम मज़लूम जो पर्दे गैब में उसका वास्ता कि हमारी इन अज़ादारी को अय्याम अदाए हुसैन को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़हूर में तारीफ़ फरमा और हम सबको उनके आवाम में शामिल शुमार फरमा।